أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum to all my students and welcome to the AG classes lecture number 7. This is your mentor, your instructor AJ. As you know, this lecture is going to be the 7th lecture of ours, and that we have covered 6 lectures previously, which are already posted on YouTube channel, the official channel of our academy, which is named after my original name. You can search it on YouTube as AJ Classes X 24/7. You will find the channel and you will find all the content that we have. You will find all the content that we have shared with you guys. So now this is going to be a 7th lecture, and I'm going to forward my slide to start it. The roadmap for our teaching is given as below. So this is going to be a lesson plan. We are going to cover in this lecture to be tense in present. But before this, let me talk a little bit about the polls that are placed in the WhatsApp group. Most of you have seen it and ticked the 4th option, which was something else. I asked the group members that what were they expecting me to deliver my next lecture on. Is option 1 was to be present tense. The option 2nd was the continuous tense in present. Option 3rd was the perfect tense in present. And the 4th one was something else. So most of the participants of group ticked the 4th option. So I'm also waiting for those students who have ticked the 4th option, and I'm eager to know what they want me to deliver in today's lecture. What are they expecting me to share with them? Eighth, this session is specifically designed for the basic English grammar course. And in this session, we cover the topics as that are aligned with our course. So how can I deviate myself from the specific course? I mean, I can do it. It's my choice, but deviation will bring me to another course. Maybe it could be a medium level course or an advanced level course. So ultimately, this is going to give you a hectic. This is going to give you a pain and headache. So I'm not going to deviate myself today from my course, and I'm following my course, and in that way I am going to share with you the today's lecture, that is to be tense in present. So in today's lecture, let me highlight it. Firstly, I am going to deliver a lecture on to be tense in present. In that, we will cover what are the uses of to be tense in present. So in most cases, people call it
present to be tense. Present to be tense. How often, but you can also term it as to be tense in present form. Secondly, we will cover the sentence structure of to be tense in present. Thirdly, we will define and enlist the helping verbs used in this tense. Fourthly, the making of sentence in positive, the making of sentence in negative form, the making of sentence in interrogative and mixed form. Finally, I have also designed a homework for those serious students who want to do their homeworks and grow and build their grammar at higher standards. So they will find the homework. This is not only fill in the blanks, it's a surprised homework. You will find this homework task right in the description of the YouTube video channel, YouTube channel's video. You will find the homework in the description of the YouTube video. When I will finish this lesson or lecture, then I mostly upload this lecture on the YouTube, and from that YouTube's description you will also find the homework task. So moving on, to teach you about the use of present to be tense in present form, I have actually drafted a dialogue for you. This dialogue is between two friends, namely Ali and Zohaib, and they are talking to each other via mobile phone communication. So in this conversation, you will observe the use of to be tense in present form. Let me show you how. Let me read the entire conversation first, and then I will describe the whole scenario with you. So in the first sentence, Zohaib says, "How are you, Ali?" Ali, in response, says, "I am fine, Zohaib." Zohaib asks, "Where are you, Ali?" Ali responds, "I am in Karachi." Ali says, Ali asks, "What is the job of our third friend, Aman, in Karachi?" Zohaib replies, "Aman is a businessman in Karachi." Ali responds, "Wow, Aman is a rich man now." So from this conversation, a little conversation, you can get the idea of the to be tense in present usage. For example, to be tense in present describes or defines the state of a subject. It defines the state of a subject. For example, Zohaib asks from Ali, "How are you, Ali?" Ali se abhi, he's asking from Ali that how do you feel now? Ali in response says, "I am fine." So it Ali Zohaib inquires about the health of Ali, and Ali replies and tells that he's fine. So what this conversation describes? This conversation describes and indicates the state. In other words, we can say that to be tense describes the state of a particular subject. The to be tense describes the state of a particular subject. Secondly,
we will see that how to be tense describes the existence of a particular subject. Taking this example in context, Zohaib, where are you, Ali? Zohaib asks, Ali, where are you? So Ali responds, I am in Karachi. I am in Karachi. I am in Karachi. That means he means Ali, Zohaib tells Ali his existence, his presence. He says his presence is in Karachi. So by this conversation, we can also uh, get the point that to be tense is used to describe the existence of a particular subject. Similarly, the third sentence, Ali, what is the job of our third friend Aman in Karachi? Zohaib, Aman is a businessman in Karachi. Ali, wow, Aman is a rich man now. Now here, Ali asks about the third friend, about the mutual third friend whose name is Aman. And he asked what is the job of his in Karachi. So Zohaib replies that Aman is a businessman now in Karachi. So this businessman or business describes the description or information of their third friend who is Aman. By this message, by this sentence, we can conclude that to be tense is also used to describe a particular subject. तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टू बी टेंस जो है वो बेसिकली तीन चीजों को हाईलाइट करता है। वो तीन चीजें कौन सी है? जुमले के अंदर अगर आप किसी सब्जेक्ट की हालत को बयान करते हो, उसकी मौजूदगी को बयान करते हो, या फिर उस सब्जेक्ट की तफसील के बारे में आप कोई चीज बयान करते हो, चाहे उसकी इंफॉर्मेशन देते हो या कुछ और, तो आप प्रेजेंट टू बी टेंस इस्तेमाल करते हो। तो आप प्रेजेंट टू बी टेंस इस्तेमाल करते हो। जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल भी दिया है यहाँ पे देख लीजिए। ये एक दो दोस्तों के बीच में एक कन्वर्सेशन यानी कि एक बातचीत हो रही है और दोनों दोस्त फोन पे बात कर रहे हैं। पहला जो दोस्त है उनका वो है जोहेब। जोहेब पूछ रहा है अली से, अली कैसे हो तुम? जोहेब पूछ रहा है, अली तुम कैसे हो? तो अली जवाब दे रहा है, जोहेब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं ठीक हूँ, ये मैं ठीक हूँ ये क्या बता रहा है? ये उसकी हालत बयान हो रही है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि जब हालत बयान होती हो तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा जुमला। जिस जुमले के अंदर हालत बयान हो, स्टेट बयान हो, तो वो समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए वो जुमला। आगे उनकी बातचीत चलती है। ज़ोहैब पूछता है, अली तुम कहाँ हो? फोन पे वो पूछ रहा है कि अली तुम कहाँ पे हो, कहाँ हो? तो अली जवाब देता है, मैं कराची हूँ। अली कहता है मैं कराची हूँ। तो मैं कराची हूँ, तो ये जो मौजूदगी का इजहार हो रहा है, ये जब भी इजहार होता है किसी भी चीज की मौजूदगी का, उसकी लोकेशन का, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर किया जाता है। आगे कन्वर्सेशन चलती है, उनकी बातचीत चलती है। अली कहता है, कराची में हमारे तीसरे दोस्त अमान का क्या काम है? तो सुहेब जवाब देता है, अमान कराची में एक ताजिर है। अमान कराची में एक ताजिर है। तो ये ताजिर होना अमान का क्या निशानदेही करता है? ये अमान की तफसील बता रहा है, अमान की तफसील बता रहा है। तो जब भी किसी एक सब्जेक्ट की तफसील बयान हो, वहां पे आप नोट कीजिएगा कि वहां पे प्रेजेंट टू बी टेंस इस्तेमाल होता होगा। अली आगे कहता है, वाह अमान एक
अमीर आदमी है। खुशी में वो कहता है कि अमान अब एक अमीर अमीर आदमी है। तो ये एक छोटी सी बातचीत थी जिसमें हमने ये अक्स किया कि जो प्रेजेंट टू बी टेंस है वो सब्जेक्ट की या तो अ, हालत बताता होगा, या मौजूदगी, प्लेस, एग्जिस्टेंस के बारे में हमें मालूमात देता होगा, या वो डिस्क्राइब करता होगा सब्जेक्ट के हवाले से, सब्जेक्ट की मालूमात देता होगा, उसकी इंफॉर्मेशन देता होगा। ये चीज़ें हमें प्रेजेंट टू बी टेंस के अंदर पता चलती हैं, और प्रेजेंट टू बी टेंस इन चीज़ों को हाईलाइट करने में काम आता है। और दूसरी बात, प्रेजेंट टू बी है तो ये याद रखिएगा कि ये मौजूदा वक्त की बात कर रहे करता होगा, करता है। जैसे मिसाल के तौर पे, आई एम इन कराची, मैं कराची में हूँ आ रहा है, कराची में हूँ, था नहीं। हूँ जब आए तो समझ जाइएगा, उर्दू में जब हूँ आए तो समझ जाइएगा वो प्रेजेंट टू बी टेंस है। और इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा आप, मैं ताजर है हूँ है, ये जो चीजें इंडिकेट करती है ये प्रेजेंट को इंडिकेट करती है, यानी कि ये प्रेजेंट के अंदर है, तो ये प्रेजेंट टू बी टेंस के अंदर चीजें आ जाती हैं। होप कि आपको ये एक कन्वर्सेशन के जरिए प्रेजेंट टू बी टेंस का अंदाजा हो चुका होगा कि प्रेजेंट टू बी टेंस किस तरह से इस्तेमाल होता है जुमले के अंदर। तो आगे चलते हैं हम। अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है प्रेजेंट टू बी टेंस का। तो ये देखिए, इसमें एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? इसमें एक सब्जेक्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मिसाल दे दूं मैं, अली इज ए इज ए हैंडसम गाय। जो अली है वो एक सब्जेक्ट है, और जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है। ए हैंडसम गाय जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। अली एक खूबसूरत आदमी है। अली एक खूबसूरत आदमी है, देखिए आखिर में है आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट टू बी टेंस है। दूसरा मिसाल देखते हैं हम। ड्रीम्स आर नॉट रियल। ड्रीम्स आर नॉट रियल, ख्वाब हकीकत नहीं होते। अभी ये दूसरा इस्तेमाल है इसका, प्रेजेंट टू बी टेंस का। अक्सर जब हकीकी बातें की जाती हो तो वहां पे टू बी टेंस इस तरह से लिखा जाता है उर्दू में, होते होते, जैसे ये हुआ है, ख्वाब हकीकत नहीं होते। वरना हम इसको इस तरह से भी कह सकते थे, ख्वाब हकीकत नहीं है, ख्वाब हकीकत नहीं है। ठीक है। तो ये ख्वाब हकीकत नहीं होते, ये भी प्रेजेंट टू बी टेंस का ही एक जुमला बनता है। आई एम एन इंस्ट्रक्टर इन इंग्लिश। मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में, और एम जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, और ऑब्जेक्ट जो है आपका वो क्या है, वो आपका एन इंस्ट्रक्टर इन इंग्लिश है। तो मैं एक अंग्रेजी का इंस्ट्रक्टर हूँ। है, हूँ और होते, ये उर्दू में याद कीजिएगा कि प्रेजेंट टू बी टेंस के अंदर आते हैं। मूविंग ऑन, अभी हम कवर करेंगे कि प्रेजेंट टू बी टेंस के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो जी, मैं आपको एक निशानदेही कर दूं कि प्रेजेंट टू बी टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो तीन होते हैं। एक इज, दूसरा आर, और तीसरा होता है एम। अच्छा, इज किसके साथ लगता है? इज लगता है आपका जब सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर हो, यानी अली हो, अमान हो, फराज हो। तो सिंगुलर नाम हो, जैसे होम हो गया एक घर, तो होम भी सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट आपका जब सिंगुलर हो, या ही हो, या शी हो, या इट हो, तो आपका हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। आगे ये मिसाल देके आपको मैं समझाऊंगा। और जब आपका हेल्पिंग वर्ब, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है, यानी कि अली एंड फराज हो गया, दो हो गए, अली और फराज हो गए। या मैं कहूँ कि हाउसेस, घर, बहुत सारे घर, तो वो जमा हो गए। या मैं कहूँ अवाम, अवाम एक जमा है। ठीक है। या फिर मैं कहूँ वी, यू, या फिर दे,
ये जो प्रोनाउंस हैं इन के साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो आर लगता है। जिस तरह से मैं लिखता हूं कि पीपल आर वेरी एंग्री एट द गवर्नमेंट, जो लोग हैं वो बहुत गुस्सा हैं गवर्नमेंट के साथ। तो पीपल जो है यहाँ पे पीपल वो एक प्लूरल है। सॉरी आई कैन नॉट राइट प्रॉपरली यूजिंग द माउस। तो जो पीपल है वो क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ फिर हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। पीपल आर एंग्री एट गवर्नमेंट। ठीक है जी, आई बात समझ में। इसी तरह से जो थर्ड इनका हेल्पिंग वर्ब है वो है एम। अच्छा, एम की खासियत ये है कि ये सिर्फ आई के साथ लगता है। जैसे मैं कहूँ आई एम एन इंस्ट्रक्टर इन इंग्लिश। आई एम, आई के साथ में एम लगा रहा हूँ। और टू बी टेंस की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टू बी टेंस की। प्रेजेंट टू बी टेंस के अंदर आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगता है। आई एम ए एन इंस्ट्रक्टर इन इंग्लिश। होप के हेल्पिंग वर्ब आपको समझ आ चुका होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड, आई थिंक आई गेस सिक्स्थ स्लाइड। सो दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, इसकी मिसाल मैंने आपको पहले ही दे दी। जो पिछली मिसाल थी वो एक पॉजिटिव सेंटेंस की थी जिसमें पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल ले लेते हैं, अली इज ए हैंडसम मैन। अली सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज है, फिर उसका ऑब्जेक्ट जो है ए हैंडसम मैन है। तो अली जो है वो एक हैंडसम मैन है। अली जो है एक खूबसूरत आदमी है। तो ये उसका पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ड्रीम्स आर रियल, ख्वाब हकीकत हैं। ड्रीम्स ख्वाब सच्चे हैं। ड्रीम्स आर रियलिटी होता है जब हम कहें ख्वाब हकीकत हैं। तो अभी यहाँ पे कहेंगे हम ड्रीम्स आर रियल, यानी कि ख्वाब सच्चे हैं। तो ड्रीम्स देखिए प्लूरल है और सब्जेक्ट, ड्रीम्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। ठीक है, जहाँ पे इज नहीं आएगा। उसका ऑब्जेक्ट है रियल। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है। अभी देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। नेगेटिव सेंटेंस में पहले हम देते हैं सब्जेक्ट। पहले हम देते हैं सब्जेक्ट, बाद में उसके हेल्पिंग वर्ब, बाद में उसके नॉट, बाद में उसके नॉट, और आखिर में देते हैं हम ऑब्जेक्ट। आखिर में देते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। मिसाल ले लेते हैं, अली इज नॉट ए हैंडसम मैन। अली एक खूबसूरत आदमी नहीं है। अली, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर उसके बाद नॉट। नेगेटिव में नॉट लाजमी आएगा। नॉट ए हैंडसम मैन, अली एक हैंडसम मैन नहीं है। आई बात समझ में। तो दूसरी मिसाल देखते हैं, ड्रीम्स और नॉट रियल। जो ख्वाब होते हैं वो सच्चे नहीं होते, वो हकीकत नहीं होते। तो ये जो ड्रीम्स है ये सब्जेक्ट हो गया, ये जो आर है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट हो गया, फिर रियल हो गया ऑब्जेक्ट के तौर पे। आई बात समझ में। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, सवालिया जुमला। सवालिया जुमला किस तरह से लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब देते हैं, बाद में हम सब्जेक्ट देते हैं, बाद में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। ठीक है, याद रखिए ये डिफरेंस है। नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों से डिफरेंस इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसका सबसे पहले आता है, उसके बाद इसका सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आता है। मिसाल देखते हैं, इज अली ए हैंडसम मैन। आखिर में क्वेश्चन मार्क, सवाल की निशानी, ये लाजमी होती है जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो। क्या अली खूबसूरत आदमी है। दूसरी मिसाल देखते हैं, आर आर ड्रीम्स रियल। क्या ख्वाब सच्चे हैं। क्या ख्वाब सच्चे हैं। तो ये पहले क्या रखा है हमने, हेल्पिंग वर्ब रखा है आर, उसके बाद सब्जेक्ट रखा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा है।
So this is about the interrogative sentence. अभी आगे देखते हैं मिक्स्ड सेंटेंस किस तरह से बनता है। ये मिक्स्ड सेंटेंस जो होते हैं ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट होता है। मिसाल देखते हैं, इज अली नॉट ए हैंडसम मैन? क्या अली खूबसूरत आदमी नहीं है? दूसरी मिसाल देखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब ड्रीम्स सब्जेक्ट, नॉट नॉट रियल ऑब्जेक्ट, और ड्रीम्स नॉट रियल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ये टाइपो एरर है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप के बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा जुमला खत्म। क्या ख्वाब हकीकत नहीं होते? ये हमारा इंट्रो मिक्स्ड सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसको हम कहते हैं। अच्छा जी, तो ये आज का सेशन था। इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट टू बी टेंस। प्रेजेंट टू बी टेंस का मैंने एक कन्वर्सेशन के जरिए आपको इस्तेमाल बताया कि वो प्रेजेंट टू बी टेंस तीन चीज़ें जो हैं हाईलाइट करता है स्पेसिफिकली। एक क्या होता है, एक होती है सब्जेक्ट की स्टेट, दूसरा होता है सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस, और तीसरा क्या होता है डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट की। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, और इसके अलावा मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताए, हेल्पिंग वर्ब्स बताए टू बी टेंस के। और उसके बाद मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कवर करवाया जिसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और आखिर में सेंटेंस मिक्स्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको करवाया। तो ये आज का एक सेशन कंप्लीट होने जा रहा है यहाँ पे। तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो होमवर्क है वो आपके YouTube के वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जाता है। आप YouTube के ऊपर वीडियो पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये उसका होमवर्क डिफाइन होगा। वहाँ पे वो होमवर्क आपने लाजमी करना होता है, और बाद में वो शेयर भी करना होता है पर्सनली अपने मेंटर टीचर के साथ। और यही आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होने जा रहा है। कोई अगर आपको सवाल हो तो आप कर सकते हो। जी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। ओके, there is no question, that means you have got all the answers of yourself. Thank you so much for your time and patience. Jazakallah. The session is going to be ended. Allah Hafiz.